کہ مہنگائی کے وار جاری ہیں۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 11 سبزیوں کے دام بڑھ گئے۔ پھل خریدنا غریب کے لیے خواب بننے لگا۔ برائلر گوشت کی قیمت میں 30 روپے کا اضافہ۔ مرغیا گوشت 557 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا ہے۔ اہم خبر ہے، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 11 سبزیوں کے دام بڑھ گئے ہیں۔ پھل خریدنا غریب کے لیے خواب بن گیا۔ انڈے 274 روپے درجن کی قیمت پر برقرار ہیں۔ جانتے ہیں زین علی سے۔ جی زین۔ مہنگائی سے عوام کی جان نہ جانے کب چھوٹے گی۔ سبزیاں، پھل، گوشت سب پہنچ سے باہر ہونے لگا۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 11 سبزیاں مزید مہنگی ہو گئیں۔ پیاز کی فروخت 70 روپے کلو میں جاری۔ ٹماٹر 50 روپے کلو میں بکنے لگا۔ لہسن چائنا 345 روپے کے بجائے 450 روپے میں فروخت۔ ادرک کی فروخت 800 روپے کلو میں ہو رہی ہے۔ لیمو دیسی کی قیمت 330 روپے مقرر مگر فروخت 650 روپے میں جاری۔ ٹینڈے اور آلو 90 روپے کلو جبکہ میتھی 110 روپے میں مل رہی ہے۔ پھل سرکاری نرخوں کے برعکس مہنگے داموں میں فروخت۔ کھجور ایرانی 550، سیب درجہ اول 450، خربوزہ 120 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ کیلا درجہ اول 400، درجہ دوم 250 روپے درجن میں دستیاب ہے۔ آڑو 390، امرود 250 اور سٹرابری 200 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی میں کمی سے گوشت 30 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 557 روپے ہو گئی۔ مسلسل بڑھتی مہنگائی سے شہری ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ اور اعلیٰ حکام سے سرکاری ریٹ لسٹ پر اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین شہباز حنیف کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی تجویز۔ ذرائع کے مطابق اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق سمری حکومت کو بھجوا دی۔ پیٹرول کی قیمت میں 5 سے 7 روپے، ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے فی لیٹر کمی کی تجویز۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق حتمی فیصلہ آج کیا جائے گا۔ مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ زاہد عابد سے۔ جی زاہد، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، طے شدہ فارمولے کے مطابق ہر ماہ 1 اور 16 تاریخ کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کیا جاتا ہے، لیکن گزشتہ کئی ہفتے ایسے گزر چکے ہیں جس میں رد و بدل نہیں ہوا، صرف قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ لیکن اس مرتبہ لگتا ایسے ہے کہ شاید عوام کو تھوڑا سا ریلیف مل سکے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اوگرا نے جو سفارش حکومت کو کی ہے اس میں پیٹرول کی قیمت میں 5 سے 7 روپے فی لیٹر جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے فی لیٹر تک کمی کی تجویز دی گئی ہے، جس کا حتمی فیصلہ وزارت خزانہ اور پھر آخر میں وزیر اعظم کریں گے۔ تاہم اس وقت تک یہ سمری حکومت کو ارسال کی جا چکی ہے، جس کے مطابق قیمتوں میں کمی کی سفارش کی گئی ہے، جس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ عالمی مارکیٹ میں اس وقت تقریباً $77 فی بیرل پر خام تیل فروخت ہو رہا ہے، جو کہ کافی کم خیال کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف جو IMF کی شرائط کے مطابق پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی حکومت نے لگانی تھی، وہ بھی اپنی انتہائی سطح 50 روپے فی لیٹر تک پہلے ہی پہنچ چکی ہے اور اب اس میں مزید اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ تاہم یہ خدشہ ضرور موجود ہے کہ جنرل سیلز ٹیکس میں اضافہ ہو سکتا ہے، جو کہ 0% ہے۔ اگر جنرل سیلز ٹیکس میں اضافہ نہیں ہوتا تو یہ قیمت میں کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت عالمی مارکیٹ کے تناظر میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل تھوڑا سا سستا ہو سکتا ہے، لیکن یہ اتنا سستا نہیں ہوگا کہ عوام کو کوئی آسانی محسوس ہو۔ لیکن اس کے باوجود جو ایک مسلسل تیزی کا رجحان تھا اس میں ٹھہراؤ دیکھا جا سکے گا، جس سے عوام کو تھوڑا سا ریلیف مل سکتا ہے۔ تاہم اس کا حتمی فیصلہ آج رات 12 بجے تک حکومت کی جانب سے کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ زاہد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ گزشتہ نااہل حکومت کی بد انتظامی کی وجہ سے پاکستان گندم درآمد کرنے والا ملک بن گیا۔ خدا کے فضل و کرم سے ملک میں اس سال گندم کی گزشتہ 10 سالوں کی نسبت سب سے زیادہ پیداوار ہوئی۔ حکومت کے کسانوں کو معیاری بیج اور کھاد کی بلا تعطل فراہمی سے گندم کی شاندار پیداوار کا حصول ممکن ہوا۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت سرکاری سطح پر گندم کی خریداری پر جائزہ اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں ہوا۔ گندم کی گزشتہ 10 سال کی نسبت 2.75 کروڑ میٹرک ٹن سے زیادہ پیداوار کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کا ملک میں گندم کی 2.75 کروڑ میٹرک ٹن ریکارڈ پیداوار پر اظہار تشکر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، تمام تر مالی مشکلات کے باوجود گندم کی بمپر پیداوار پر کاشتکار اور پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے۔ گزشتہ حکومت نے کسانوں کو کھاد کے لیے پورا دن لمبی قطاروں میں کھڑا رکھا۔ صوبائی اور وفاقی محکمے براہ راست کسانوں سے گندم خریدیں تاکہ کاشتکار کو بھرپور فائدہ پہنچے۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی یقینی بنائی جائے۔ تمام افسران گندم کی بروقت خریداری یقینی بنائیں۔ وزیر اعظم نے خصوصی ہدایت کی کہ گندم کی متعین کردہ مقدار کے حصول کے لیے درکار وسائل کو بینکوں کے ذریعے مہیا کیا جائے۔ اجلاس میں وفاقی وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکورٹی طارق بشیر چیمہ، مشیر وزیر اعظم احد خان چیمہ، معاون خصوصی طارق باجوہ، نگران صوبائی وزیر برائے انڈسٹریز پنجاب ایس ایم تنویر اور متعلقہ حکام نے شرکت کی۔
निगरान पंजाब हुकूमत ने मुफ्त आटा स्कीम में लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। वजीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं मुफ्त आटा स्कीम में एक पाई की भी करप्शन नहीं हुई। शाहिद खाकान अब्बासी सबूत दें वरना माजरत करें। वजीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा कि इल्जामात लगाने वालों की अपनी साख मजरू है। आटा स्कीम पंजाब की तारीख का कामयाब तरीन स्कीम रही है। स्कीम से पंजाब के 3 करोड़ मुस्तहिक लोगों ने फ़ायदा उठाया है। आटा स्कीम को वफाकी और पंजाब हुकूमत ने मिलकर फ़ंड्स फराहम किया। आटा स्कीम को पार्टी के अंदरूनी सियासत की बेच चढ़ाना सरासर ज़्यादती है। पंजाब हुकूमत पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। पंजाब हुकूमत एक एक पाई का हिसाब दे सकती है। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में अपनी हिकमत अमली बना ली। इमरान खान का लिबर्टी चौक से नासिर बाग तक रैली की क़यादत करेंगे। इस्लामाबाद में रैली की क़यादत शाह महमूद कुरैशी करेंगे। पेशावर में रैली की क़यादत परवेज़ खटक करेंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं लियाकत अली से। लियाकत, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ कल जो है यौम मई के मौका पर लाहौर में एक बड़ी रैली निकालने जा रही है, जिसका आगाज़ लिबर्टी चौक से दोपहर 1 बजे होगा और इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस रैली की क़यादत खुद करेंगे। ये रैली लिबर्टी चौक से शुरू होकर जो है फिरोज़पुर रोड के रास्ते होते हुए नासिर बाग तक पहुँचेगी और इस रैली में जो है मुख्तलिफ़ मकामात पर इमरान खान का और रैली के शुरका का इस्तकबाल किया जाएगा। PTI की क़यादत के कल के जो होने वाले इजलास थे उसमें इस हवाले से फ़ैसला किया गया था। कल लाहौर के साथ साथ पेशावर में भी रैली निकाली जा रही है और इस्लामाबाद में भी। इस्लामाबाद में शाह महमूद कुरैशी रैली की क़यादत करेंगे और पेशावर में परवेज़ खटक जो है इस रैली की क़यादत करेंगे। अब बताया यही जा रहा है कि बुनियादी तौर पर यह यौम मई के मौका पर मज़दूरों के साथ इजहार यकजहती की रैली है, लेकिन इस रैली को जो है वो हुकूमत के ऊपर एक दबाव के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा और मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में इन रैलियों को जो है वह हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक की तैयारी का हिस्सा भी करार दिया जा रहा है। साथ ही साथ इन रैलियों को जो है वो चूँकि इंतखाबात का बिगल बच चुका है तो उसके लिए भी जो है इंतखाबी मुहिम का हिस्सा भी करार दिया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने लाहौर के तमाम जो टिकट होल्डर्स थे उनको ज़मान पार्क में बुलाकर इजलास किया और उनको जो है रैली के तमाम जो रूट है उस पर मुख्तलिफ़ जगह पर टास्क सौंपे हैं कि वो अपने कारकुनों के साथ इस रैली का इस्तकबाल करेंगे और रैली को भरपूर कामयाब बनाने के लिए तमाम टिकट होल्डर जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो यूँ आइन की बालादस्ती के लिए, इंतखाबी मकासद के लिए और मज़दूरों के साथ इजहार यकजहती के लिए कल जो है यौम मई के मौका पर लाहौर में PTI एक बड़ी रैली निकालने जा रही है, जिसकी क़यादत खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान करेंगे। जी लियाकत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया लियाकत। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर पुलिस रेड का मामला निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का रद्द अमल। कहते हैं किसी को गैर कानूनी काम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अपने ट्विटर पैगाम में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि इस वक्त मदीना में मौजूद हूँ, वाक़े से मुतल्लिक़ तमाम तफसीलात हासिल कर रहा हूँ। ये जानकर अफसोस हुआ कि टीम चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने गई, लेकिन चौधरी शुजात के घर पर धावा बोल दिया, जिसमें चौधरी सालिक हुसैन ज़ख्मी हुए। मोहसिन नकवी ने कहा कि कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। साबिक गवर्नर पंजाब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी सरवर ने कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि चौधरी शुजात हुसैन से गैर मशरूत माफ़ी मांगे। चौधरी सरवर ने अपने ट्वीट पैगाम में निगरान की तरफ आपको बताएं कि शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात से फौरी रब्ता करके माजरत का भी कहा गया है। चौधरी सरवर की जानिब से हुकूमती अहदेदारान यकीनी बनाएं कि आइंदा ऐसा कोई वाक़या रोनुमा नहीं होगा। चौधरी सरवर ने कहा कि कोई दोस्त हो या दुश्मन, हम किसी के साथ ज़्यादती पसंद नहीं करते। बगैर वारंट पुलिस कैसे चौधरी शुजात की रिहाइश गाह में दाखिल हुई, इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए। गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान से साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मुलाकात हुई है। मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। गवर्नर पंजाब का कहना था कि हुकूमत मुल्क की मईशत का मुस्तहकम करने समेत दीगर मसाइल हल करने के लिए इक़दाम उठा रही है। खुशहाल और मुस्तहकम पाकिस्तान ही हम सब की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। जल्द गवर्नर हाउस को आवाम के लिए खोला जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने बतौर पेट्रोलियम मिनिस्टर LNG की सस्ते दामों दरामद की, जिससे मुल्क को बहुत फ़ायदा हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के तनाजुर में हुकूमत को यकसुई से काम करने का मौका मिलना चाहिए, ताकि हुकूमत मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए अहम और बरवक्त फ़ैसले कर सके।
पी टी आई के सेनेटर एजाज अहमद चौधरी का मरदम शुमारी पर रद्द अमल, कहा कि मौजूदा मरदम शुमारी एक फ्रॉड है। इम्पोर्टेड हुकूमत मरदम शुमारी में भी धांधली से बाज नहीं आई। पंजाब से कौमी असम्बली की 7 नशिस्तें कम कर दी गई हैं। मज़ीद जानते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत, बताइएगा एजाज चौधरी की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया है, कौन सी 7 नशिस्तें हैं जिन्हें ख़त्म किया गया है? और देखें, सेनेटर एजाज चौधरी का ये रद्द अमल सामने आया है और तहरीक इंसाफ ने भी मरदमशुमारी को मुस्तरद कर दिया है। पहले ही जमात इस्लामी और MQM जो है वो मरदमशुमारी के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात दे चुकी है। सेनेटर एजाज चौधरी का कहना है कि मौजूदा मरदमशुमारी एक फ्रॉड है और मरदमशुमारी के खिलाफ मुल्क में एहतजाज भी इस वक्त हो रहा है। इम्पोर्टेड हुकूमत मरदमशुमारी में भी धांधली से बात नहीं आई और पंजाब की कौमी असम्बली की 7 नशिस्तें कम की गई हैं। गुज़श्ता मरदमशुमारी में भी 3 नशिस्तें कम कर दी गई थी और पंजाब ने खामोश रहने का ठेका नहीं लिया हुआ। हम भी अपना पूरा एहतजाज करेंगे और पंजाब में इस सिलसिले में एहतजाजी तहरीक भी चलाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि महकमा सेहत के मुताबिक आबादी में इजाफा हैरानकुन है कि महकमा शुमारियत के मुताबिक कमी हो रही है। मुल्क की तमीर, तरक्की और खुशहाली का बराह रास्त मरदमशुमारी से ताल्लुक है और मरदमशुमारी के हवाले से हुकूमती रवैया अफसोसनाक है। आपका बहुत शुक्रिया लियाकत। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में चाइनीज़ डॉक्टर्स की आमद। PIC और नैनजिंग अस्पताल चाइना के ताउन से मरीज़ों के जदीद इलाज पर काम किया जाएगा। PIC में फेफड़ों, ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए पल्मोनरी वेस्कुलर डिजीज़ सेंटर कायम। CEO PIC प्रोफेसर डॉक्टर बिलाल मुहियुद्दीन का कहना है कि फेफड़ों के ब्लड प्रेशर की बीमारी पर ताहाल पाकिस्तान में कोई ख़ास रिसर्च नहीं है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, आज पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में आज चाइनीज़ वफ़द ने दौरा किया है, जिसमें चाइना के ताउन से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर जो दिल की बीमारियां हैं, ख़ासकर जिनमें जो लंग्स का जो ब्लड प्रेशर उसके हवाले से आज एक नया जो डिपार्टमेंट है ये भी कायम कर दिया गया है। चाइनीज़ के जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर चैन, उनकी जानिब से विज़िट भी किया गया। इस वक्त हमारे साथ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के CEO प्रोफेसर बिलाल मुहियुद्दीन हमारे पास मौजूद हैं। तो हमसे पूछते हैं कि चाइनीज़ वफ़द का जो दौरा है ये कैसा है और इससे जो पाकिस्तान के जो पेशेंट हैं, ख़ासकर पंजाब के जो पेशेंट्स हैं, उनको क्या बेनिफिट मिलेगा और इनके ताउन से जो डॉक्टर्स हैं क्या उनको भी कोई फ़ायदा होगा? प्रोफेसर चैंग हमारे पुराने दोस्तों में से हैं जो हमारे पास आते रहे हैं पिछले कई सालों से और इन्होंने हमारे साथ पिछली भी तहकीक में इन्वॉल्व रहे हैं। इस दफ़ा फ़ैसला ये हुआ कि जैसे कि ब्लड प्रेशर होता है जो कि जिस्म के ऊपर असर करता है, एक दूसरा ब्लड प्रेशर है जो फेफड़ों का ब्लड प्रेशर है, उसके बारे में किया जाए। ये वो हिस्सा है जो कदरे उतनी टेंशन नहीं ले पाता क्योंकि इसके ऊपर ना उस किस्म की दवाइयाँ ना उस किस्म के आलात अवेलेबल हैं। इस वक्त दुनिया की तहकीक जैसे जैसे आगे जा रही है, इसमें बेहतर दवाइयाँ भी आ रही हैं और आलात भी आ रहे हैं इसके इलाज के लिए। पाकिस्तान को ज़ाहिर है बहुत सारी वीकनेस कमज़ोरियाँ हैं बिकॉज़ आजकल के जो वसाइल का आलम है, इस वसाइल के आलम की दुनिया में आज जो ख़ास तौर पे हमें हमारे दोस्तों ने हेल्प की है, उन्होंने वादा ये दिया है हमें कि हम लोग ये पूरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करेंगे पाकिस्तान में। और ये सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है और साथ ही ये चाइना का ये रेफरल सेंटर और हमारे जॉइंट अस्पतालों की एक मिल की काविश बन जाएगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा उन बच्चों और बच्चियों और बाकी लोगों के लिए है जिनको ये फेफड़ों की बीमारी का मसला है और इस मसले की वजह से उनकी आगे ज़िंदगी में बढ़ोतरी में बड़ा मसला पड़ता है। अगर ये चीज़ें जिसके ऊपर हम लगे हुए हैं, इसके साथ हज़ारों लोगों को इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। ज़ाहिर है एक लंबे सफ़र का कदम पहले छोटे कदम से उठता है। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने देखा कि प्रोफेसर बिलाल मुहियुद्दीन की ज़ाती काविशों से ये जो बीमारी है जिसको पल्मोनरी वेस्कुलर डिजीज़ कहते हैं, इसकी जो है ये प्रिवेंशन के लिए काम जो है शुरू हो चुका है। उम्मीद इस बात की है कि किस तरह इस काम को आगे लेके जाते हैं और ख़ासकर जो छोटे बच्चे हैं उनका किस तरह जो ट्रीटमेंट है ये किया जाता है। आपका बहुत लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। बरकी में लाखों रुपए मालियत की बिजली चोरी पकड़ी गई। मुख्तलिफ देहात में 22 बिजली चोर पकड़े गए। मुकदमात दर्ज। ऑपरेशन के दौरान तारें घरों की छतों से हटाकर बिजली के पोल्स पर मुंतकिल की गई। बिजली चोरी में मुलव्वस सारिफीन को 80,000 यूनिट्स की डी टैक्स बिल्स चार्ज किए गए। मज़ीद जानते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद, अपडेट। जी बिल्कुल, लेस्को की जानिब से बरकी सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। मुख्तलिफ देहात में लाखों मालियत की बिजली चोरी जो है वो इस ग्रैंड ऑपरेशन में पकड़ी गई है। SDO बरकी मोहम्मद जुनैद की सरबराही में टीम ने मुख्तलिफ देहात में जो है वो चेकिंग की थी आज, और चेकिंग के दौरान 22 बिजली चोर रंगे हाथों पकड़े गए। बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवा दिए गए हैं, जबकि बिजली चोरी में मुलव्वस सार्फिन को 80,000 यूनिट्स के डिटेक्शन बिल भी चार्ज कर दिए गए हैं। एक्सियन मेराज खालिद और SDO जुनैद की जेर निगरानी ऑपरेशन में
सर्कल के 22 एहलकारों ने जो है वो हिस्सा लिया। क्लासमाड़ी बदरी ब्रिज से मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान अमला ने बिजली मीटर दीवारों से पोल्स पर जो है वो मुंतकिल किए हैं। ऑपरेशन के दौरान बिजली की तारें घरों की छतों से हटाकर बिजली पोल्स पर मुंतकिल कर दी गई हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया फहद। वासा लाहौर का LOS ड्रेन पर ग्रैंड डिसल्टिंग ऑपरेशन का आगाज़। MD वासा गुफरान अहमद ने ग्रैंड डिसल्टिंग ऑपरेशन का मुआयना किया। DMD ऑपरेशन अब्दुल करीम ने ऑपरेशन से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। MD वासा गुफरान अहमद की डिसल्टिंग ऑपरेशन को तेज़ करने की हिदायत। मज़ीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। मॉनसून में बाशी पानी के निकास को बर वक्त मुमकिन बनाने के लिए वासा हुकाम की जानिब से अभी से ही प्री मॉनसून प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है और वासा लाहौर ने आज से LOS ड्रेन पर ग्रैंड डिसल्टिंग का बाकायदा आगाज कर दिया है। MD वासा गुफरान अहमद ने छुट्टी के रोज इस ग्रैंड डिसल्टिंग ऑपरेशन का जायजा लिया, जबकि डिप्टी MD ऑपरेशन की जानिब से MD वासा को डिसल्टिंग ऑपरेशन की मदद से के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर ब्रीफिंग में बताया गया कि आज से LOS ड्रेन की जो डिसल्टिंग का आगाज किया गया है, इस ऑपरेशन में 5 एक्सकेवेटर, 30 डंप ट्रक, 5 ट्रैक्टर ट्राली और 80 से ज्यादा अमला है जो ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है। MD वासा की जानिब से डिसल्टिंग ऑपरेशन को तेज करने की हदायत जारी करते हुए कहा गया कि मॉनसून से कबल तमाम ड्रेन्स की डिसल्टिंग के 2 साइकिल मुकम्मल किए जाएं, ताकि अगर मॉनसून के दौरान तेज बारिशें होती हैं तो उसके निकास को बर वक्त मुमकिन बनाते हुए निशेबी इलाकों से बारिशी पानी का निकास जल्द हो सके। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैन। जर्मन सफ़ीर एल्फ्रेड ग्रीन्स की ज़मान पाक आमद। जर्मन सफ़ीर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में अहम अमूर पर तफसीली गुफ्तगू होगी। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत, इस मुलाकात के हवाले से बताइएगा। आज बिल्कुल जर्मन सफ़ीर जो है कुछ देर कबल तमाम पास पहुंचे हैं और जर्मन सफ़ीर की चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात होगी, जिसमें मुल्की मामलात पर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। जर्मन सफ़ीर और चेयरमैन इमरान खान जो है तहरीक इंसाफ के, उनके दरमियान जो है मुल्की मामलात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। इसी तरह जो है इमरान खान जो हुकूमत की जानब से मुख्तलिफ इक़दाम तहरीक इंसाफ की तरफ से किए जा रहे हैं, उस पर जर्मन सफ़ीर को एतमाद के लेंगे और साथ ही साथ जो PTI के मुतालबात हैं वो भी जर्मन सफ़ीर के साथ मुलाकात में ज़ेर बहस आएंगे। लियाकत, आपको सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा करते एक अरसा गुजर गया, इस तरह की मुलाकातें क्या आम प्रैक्टिस है या अब कुछ ख़ास मामलात हैं जिसकी वजह से मुलाकातें हो रही हैं? देखें, ये सफारती मिशन और सफ़ीर जो है ये सियासतदानों से मिलते रहते हैं, ये एक आम मामूल की एक्टिविटी है। लेकिन चूंकि इस वक्त हालात इस तरह के हैं कि तमाम जो ममालिक के सफ़ीर होते हैं वो उन्हें अपने ममालिक को भी रिपोर्ट्स भेजनी होती हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है और कौन सा लीडर जो है इस वक्त क्या सोच रहा है, हुकूमत क्या सोच रही है, अपोजिशन क्या सोच रही है। तो इसके लिए जो मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर होते हैं वो सियासी शख्सियात, सियासी जमातों के सरबराहों से मुलाकातें करते हैं ताकि वो एक्चुअल फीडबैक ले सकें, क्योंकि सियासतदानों के अमूमी बयानात जो मीडिया में रिपोर्ट होते हैं वो कदरे मुख्तलिफ होते हैं और बाज़ दफ़ा जब मुलाकात होती है तो उसमें सफ़ीर जो है वो असल हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते हैं। तो यकीनी तौर पर जो जर्मन सफ़ीर की ये मुलाकात है, गुज़श्ता दिनों जो है वो अमरीकी सफ़ीर की जो है वो फवाद चौधरी से मुलाकात हुई थी, तो अब ये जर्मन सफ़ीर की चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात है। तो यकीनी तौर पर लियाकत, आप बता रहे हैं कि सुफरा का मिलना एक मामूल की बात है, तो इन मुलाकातों के बाद मुल्की सियासत पर क्या असरात मुरतब होते हैं? लेकिन इसमें जो सफ़ीर है मुलाकात के बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो अपने जो फॉरेन ऑफिस हैं उनको भिजवाते हैं, जिसमें हुकूमतें फिर फैसला करती हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान के सियासी हालात है उसके तनासुर में उनकी पॉलिसी क्या होगी, वो कि उनकी ममालिक के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे। फिर वो अपना किरदार अदा करते हैं कि उसमें कुछ बेहतरी के लिए या फिर उस ममालिक के साथ उन रिपोर्ट्स का असरात जो है वो डेफिनेटली मुरतब होते हैं। जी ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया। उमर टाउन में इलाका मकीन गैस बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज। इलाका मकीनों ने चूल्हे हाथ में उठाकर एहतजाज किया। मकीनों का कहना है कि बार बार शिकायत दर्ज करवा चुके लेकिन महकमे की जानिब से कोई सुनवाई नहीं। मजीद जानते हैं ज़ैन अली से। जी ज़ैन।
جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں لاہور کے علاقے عمر ٹاؤن میں. علاقہ کی مکینوں کی جانب سے گیس بندش کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کیا جا رہا ہے. یہ بڑی تعداد جو ہے وہ شہریوں کی یہاں پر موجود ہے. حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کری ہے. گیس کب سے بند ہے، کب سے نہیں آ رہی، مزید انہی سے جانتے ہیں. سر آپ بتائیے گا کب سے گیس بند ہے، کب سے نہیں آ رہی؟ یہ پچھلے تقریباً سردیوں میں جنوری سے لے کر یہ گیس یہاں نہیں ہے. بیچ میں کچھ عرصہ آئی 15-20 دن، کیونکہ لائن میں پانی وافر مقدار میں موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ پوری 5-7 گلیاں گیس سے محروم ہیں. رمضان کے روزے بھی ایسے رکھے گئے ہیں اور بری طرح لوگ متاثر ہیں. پہلے ہی غربت ہے، مہنگائی ہے، ہم سلنڈر بھروا کر تھک چکے ہیں. اتنی مہنگی گیس ہوا ہے، 300-400 روپے کی کلو آ رہی ہے. تو یہ ایک ہمیں ایک سہولت حاصل تھی، یہ بھی ہم سے چھین لی گئی ہے. ہم حکومت سے، محکمہ سوئی گیس سے یہ درخواست کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری گیس کو فوری طور پر صحیح کیا جائے. تمام گلیوں میں گیس آنی چاہیے تاکہ یہ بچے جو صبح ناشتے کے بغیر جاتے ہیں، بوڑھے جو بزرگ گھر میں کھانے کے بغیر سو جاتے ہیں، وہ ان کو اس چیز سے نجات ملے. کبھی کوئی شکایت درج کروائی تو آگے سے ان کا کیا کہنا ہے؟ جی ایک دفعہ کمپلین کم از کم کو 35-40 کمپلینیں ہو چکی ہیں. تقریباً 2-3 گلیوں والوں نے سب نے مختلف کمپلینیں کی ہیں اور کال آتی ہے کہ ابھی آ جاتی ٹیم، ابھی آ جاتی ہے ٹیم. اس کے باوجود ابھی تک کوئی ہمارے پاس ٹیم نہیں آئی. یہ مین جو لینڈ ہے اس کی، یہ سیوریج، وہ اس کے اندر پانی آیا ہوا ہے اور اتنی زیادہ کمپلین کی ہیں، ان کو کال بھی کی ہیں، ای میل کی ہیں کہ بھائی آ کے مین ایشو ہے اور بچے بھوکے اسکول جا رہے ہیں. بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے. جو سوئی کے جہاں پہ 300 کلو ایل پی جی تھی اور انہوں نے ریٹ بڑھا دیے ہیں. غریب کا پریشان حال نہیں ہے کوئی. بہت زیادہ اور بلوں میں بھی اضافہ کر دیا ہے، میٹر کے کرایے میں بھی اضافہ کر دیا ہے. جی بالکل، لاہور کے علاقے عمر ٹاؤن کے رہائشی کی آپ لوگوں نے بات سنی. یہ مطالبہ کر رہے ہیں محکمہ سوئی ناردرن سے کہ ان کی گیس کی جو بندش ہے ان کو بحال کیا جائے، اور گیس جو ہے وہ آنے کا نام نہیں لے رہی. ان کا مطالبہ ہے کہ گیس کو جو ہے وہ بحال کیا جائے. جی آپ کا بہت شکریہ. پی ٹی آئی کے مینار پاکستان جلسے میں سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا معاملہ. 1 ماہ سے زائد وقت گزرنے کے باوجود پی ایچ اے نے پی ٹی آئی سے ریکوری نہ کی. نگران وزیر ہاؤسنگ نے پی ایچ اے انتظامیہ کو دوبارہ پی ٹی آئی کو مراسلہ لکھنے کا حکم دے دیا. پاکستان تحریک انصاف کے مینار پاکستان جلسہ میں پارک کی املاک کو مبینہ طور پر نقصان پہنچایا گیا. پی ایچ اے انتظامیہ تاحال پی ٹی آئی لیڈرشپ سے نقصان کی ریکوری نہ کر سکی. پی ایچ اے انتظامیہ کا ذاتی وسائل سے نقصان پورا کرنے کا انکشاف. پی ایچ اے نے سرکاری خزانے کا استعمال کر کے پارک کی بحالی کا کام کروایا. انچارج ہارٹیکلچر 1 نے صدر لاہور پی ٹی آئی کو نقصان کے ازالے کے لیے مراسلہ لکھا تھا. مینار پاکستان میں 23 سے 26 مارچ تک پی ٹی آئی جلسے کے سبب 2,93,80,000 روپے کا نقصان ہوا. ماضی میں 21 مارچ 2021 کو مینار پاکستان پی ٹی آئی جلسے کے دوران 40,69,000 روپے کا نقصان ہوا تھا. پی ٹی آئی قیادت نے ماضی میں ہونے والے نقصانات کی رقم بھی جمع نہیں کروائی. نگران وزیر ہاؤسنگ سید اظفر علی ناصر کا کہنا ہے کہ پارک میں ہونے والے نقصانات کا ہر صورت ازالہ کیا جائے گا. پی ایچ اے انتظامیہ کو حکم دیا ہے کہ دوبارہ پی ٹی آئی کو مراسلہ لکھ کر ریکوری کرے. شہر لاہور میں پارکنگ مافیا کا راج. شہریوں سے اوور چارجنگ کا سلسلہ جاری. پارکنگ کمپنی نے بلدیہ عظمیٰ لاہور کو ریونیو کی مد میں ایک دھیلا جمع نہیں کروایا. خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان. پارکنگ مافیا شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا. شہریوں سے اوور چارجنگ معمول بن گئی. اسپیشل برانچ کی رپورٹ کے مطابق پارکنگ سائٹ مال روڈ، ہال روڈ، سرکولر روڈ، شاہ عالم مارکیٹ میں اوور چارجنگ کا سلسلہ جاری ہے. فیروز پور روڈ، انارکلی اور نیلا گنبد سے ٹوکن فیس قیمت میں زائد وصولی کی جا رہی ہے. 10 پارکنگ سائٹ پر ہینڈلر آٹومیٹک مشینری نصب ہونے کے بعد مافیا نے غائب کروا دی ہے. مشینری غائب ہونے سے پارکنگ ریونیو تاحال خسارے کا شکار ہے. اب 5 سال بعد دوبارہ لبرٹی مارکیٹ میں آٹومیٹڈ مشینری لگانے کا تجربہ کیا ہے جو ناکام ہو گیا ہے. لبرٹی پارکنگ سائٹ پر بھی اوور چارجنگ دھڑلے کے ساتھ جاری ہے. اسپیشل برانچ کی رپورٹ کے مطابق 100 سے زائد پارکنگ سائٹس پر اوور چارجنگ کی جا رہی ہے. متعدد پارکنگ سائٹ سے موٹر سائیکل پارکنگ فیس 10 روپے کی بجائے 20 سے 30 روپے وصول ہو رہی ہے. کار پارکنگ فیس 30 روپے کی بجائے 50 سے 100 روپے لی جا رہی ہے. 20 پارکنگ سائٹس پر پارکنگ مافیا کا قبضہ تاحال موجود ہے. لاہور پارکنگ کمپنی کو یومیہ لاکھوں روپے ریونیو کا خسارہ ہے. وزیر بلدیات ابراہیم حسن مراد کا کہنا ہے کہ پارکنگ فیس کی اوور چارجنگ بارے تحفظات ہیں. مافیا سے نمٹنے کے لیے شہری ہمارا ساتھ دیں. لاہور ریلوے اسٹیشن پر پارکنگ مافیا کا راج. فری پارکنگ پر بھی پیسے وصول کرنے لگے. ریلوے انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے.
शहर में पार्किंग मसाइल हल न हुए, रेलवे स्टेशन पर भी पार्किंग माफिया लूट खोस्ट में मसरूफ। ड्रॉप लाइन और फ्री लाइन पर भी पार्किंग फीस वसूल की जा रही है। जराये का कहना है कि रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों से फी घंटा पार्किंग फीस वसूल की जाती है। शिकायत करने वाले मुसाफिरों से माफिया के कारिंदे बदतमीजी करते हैं। मुआहदे के खिलाफ चिंची रिक्शा स्टैंड भी कायम कर दिया गया है। पार्किंग एरिया में कैंटीन्स की लोडिंग और इन लोडिंग का सिलसिला भी जारी। शहरियों का वफाकी वजीर रेलवे से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। दूसरी जानिब DCO रेलवे लाहौर डिवीजन रुबाब मलिक का कहना है कि मुसाफिरों को तंग करने वाले अफराद और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कम आमदन और नजरअंदाज इलाकों के रहायशियों के लिए साफ पानी की फराहमी का मंसूबा। पंचपीर शादीपुरा में वासा लाहौर यूनिसेफ के ताउन से नई वाटर सप्लाई की तनसीब अमल में लाएगा। नई सप्लाई लाइन के लिए यूनिसेफ 2 करोड़ रुपए माली इमदाद फराहम करेगा। नज़रअंदाज इलाकों के मकीनों के लिए अच्छी खबर। वासा ने कम आमदनी वाले इलाकों के लिए साफ पानी की फराहमी का नया मंसूबा तैयार कर लिया। पंचपीर शादीपुरा में वासा यूनिसेफ के ताउन से नई वाटर सप्लाई लाइन की तनसीब अमल में लाएगा। डिजाइन के मुताबिक यूनिसेफ के ताउन से वासा 8000 फीट वाटर सप्लाई लाइन बिछाएगा। मंसूबे की तनसीब से पंचपीर शादीपुरा अजीज भट्टी टाउन की 10,000 से जायद आबादी मुस्तफीद होगी। यूनिसेफ की नुमाइंदा सबाहत अम्बरीन का कहना है कि नई सप्लाई लाइन के लिए यूनिसेफ 2 करोड़ रुपए माली इमदाद फराहम करेगा। यूनिसेफ वासा लाहौर की मुआशी और तकनीकी मावनत जारी रखेगा। MD वासा गुफरान अहमद का कहना है कि ये मंसूबा 2 से 3 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। यूनिसेफ का ताउन काबिल सताइश है। यूनिसेफ ने यूनियन कौंसिल गवाल मंडी और यूनियन कौंसिल सांदा कला में भी वाटर सप्लाई लाइन लगाने का आदा किया। मंसूबे से वासा को साफ पानी की तरसीली निज़ाम में मजीद बेहतरी लाने में मदद मिलेगी। लाहौर म्यूज़ियम में थाईलैंड की हुकूमत ने अपनी सकाफत को उजागर करने के लिए कदीम बुद्धा का मुजस्समा रख दिया। बुद्धा के मुजस्समे को अजायब घर इंतज़ामिया के हवाले करने की तकरीब थाईलैंड के सफ़ीर और लाहौर अजायब घर इंतज़ामिया ने शिरकत की। देखिए ये रिपोर्ट। हर तहजीब अपने अंदर मुख्तलिफ रंग समोए होती है और तारीख के सफ़ात पलटती नजर आती है, जिससे नई नस्ल अपनी जुबान के साथ साथ दूसरे ममालिक के बारे मालूमात हासिल करती है। इसी तरह लाहौर म्यूजियम भी तारीख का खजाना समोए हुए है। अब थाईलैंड ने कदीम बुद्धा का मुजस्समा बनाकर लाहौर म्यूजियम को तोहफा दे दिया है। बुद्धा का मुजस्समा अजायब घर इंतजामिया के हवाले करने की तकरीब थाईलैंड के सफ़ीर ने खसूसी शिरकत की और उन्होंने लाहौर अजायब घर के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी किया। डायरेक्टर लाहौर अजायब घर मोहम्मद उस्मान का कहना था कि पाक थाईलैंड के दरमियान ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। इस तोहफे से इन ताल्लुकात में खुशगवार इजाफा होगा। ये एक मुश्तरका पहलू है जो हमें थाई तहजीब में और पाकिस्तान की कदीम तहजीब में मुश्तरका तौर पे मिलता है, और मैं समझता हूँ कि इस तरह के तोहफ़ों से नौजवान नस्ल को अपनी कदीम तहजीब से और अपने इर्द गिर्द के बरादर मुल्कों की अपनी तहजीब के से जो मुख्तलिफ राब्ते हैं उनको जानने में बहुत मदद मिलेगी। थाईलैंड के सफ़ीर का कहना था कि 20 साल कबल भी यहाँ आया था। पाकिस्तान अपना दूसरा घर लगता है, यहाँ की सकाफत मुतासिर करती है। बुद्धा का मुजस्समा लाहौर म्यूजियम में रखने से मुकामी लोगों को हमारी सकाफत से आगाही मिलेगी। कैमरामैन मोहम्मद अजीम के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। आती हुई गर्मी को जरा ब्रेक लग गई। रात होने वाली हल्की बारिश ने मौसम दिलकश बना दिया। आइंदा 3 रोज भी बादल रंग जमाएंगे, फिजा भी साफ होगी। अप्रैल का महीना तो खुशगवारी के साथ इख्तिताम पजीर हो रहा है। चंद दिन गर्मी का जोर तो जरूर हुआ, मगर मजमूई तौर पर मौसम खुशगवार ही रहा। आज भी आसमान पर सुरमई बादल आवारा गर्दी में मसरूफ हैं। सुबह तो इन बादलों ने सूरज की एक न चलने दी। ठंडी हवा के झोंके भी चलते रहे। रात बूंदाबांदी ने मौसम में खन्नकी पैदा कर दी। आज भी सूरज की कम कम चलेगी। बादलों के बसेरे आसमान पर नजर आ रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 रोज में हल्की और तेज बारिश का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 50% रहा और हवा 16 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती रही। फजाई आलूदगी में कदरे कमी आई है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स सिर्फ 141 रह गया। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। कम से कम उजरत के कानून पर अमल दरामद करवाया जाए। मजदूर रहनुमाओं ने 1 मई पर हुकूमत से मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान लेबर राइट्स कौंसिल के चेयरमैन मखदूम मोहम्मद दरियाब का कहना है कि लाखों वर्कर्स को मुस्तकिल नौकरी नहीं दी जा रही। वर्कर्स के हकूक़ के लिए कायम इदारे अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहे।
1 मई मजदूरों की कुर्बानी की याद का दिन। पाकिस्तान में मजदूर बेपनाह मसाइल का शिकार। लेबर राइट्स के कवानीन पर अमल दरामद भी ना हो सका। मजदूर रहनुमाओं ने एक बार फिर हुक्मरानों को अपने वादे याद दिला दिए। पाकिस्तान लेबर राइट्स कौंसिल के चेयरमैन मखदूम मोहम्मद दरियाब कहते हैं कि तमाम तर दावों के बावजूद भी वर्कर्स के हालात वैसे के वैसे हैं। हुकूमत अपने ऐलानात पर अमल दरामद करवाए। मजदूर मुलाजमतों से निकले हुए हैं, मुकदमा झूठे बने हुए हैं, उनकी सुनवाई हो नहीं रही, मजदूरों की वेलफेयर का कोई काम नहीं हो रहा। भट्टा के मजदूर, फ्लोर मिल्स के मजदूर, वापडा के मजदूरों को उनकी जायज़ हकूक नहीं दिए जा रहे। पाकिस्तान लेबर राइट्स कौंसिल के चेयरमैन ने वर्कर्स के हुकूक के लिए काम करने वाले इदारों से भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का मुतालबा किया। सरबराह पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी शुजात हुसैन की रहायशगाह पर रेंजर्स तैनात। रेंजर्स एहलकार चौधरी शुजात हुसैन की रहायशगाह के दाखिली दरवाजे पर तैनात। पुलिस ने परवेज इलाही के घर ऑपरेशन के दौरान चौधरी शुजात के घर का दरवाज़ा तोड़ दिया था। आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि चौधरी शुजात हुसैन के घर के बाहर रेंजर्स तैनात कर दिए गए हैं। रेंजर एहलकार चौधरी शुजात हुसैन की रहायशगाह के दाखिली दरवाजे पर तैनात किए गए हैं, जबकि पुलिस ने परवेज़ इलाही के घर में ऑपरेशन के दौरान चौधरी शुजात के घर का दरवाज़ा तोड़ दिया था। इस हवाले से अब रेंजर्स की तैनाती कर दी गई है। वफाकी हुकूमत की जानिब से चौधरी शुजात हुसैन की रहायशगाह पर रेंजर्स को तैनात कर दिया गया है। सरबराह पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी शुजात हुसैन की रहायशगाह पर रेंजर्स तैनात।